Hello, good dear students. In the last lectures, we had discussed about some batch-wise operations in the steaming process. First one was the aging, in which steam printed material is steamed at the atmospheric pressure. That means if we want to have the fixation process at less than 100 degrees centigrade, then aging process is carried out. And if we want to fix the dye present in the print at a temperature higher than the 100 degree centigrade, then naturally we will have to increase the pressure, so then only temperature will be achieved higher than the 100 degree centigrade. In the previous lecture, we had discussed about the cottage steamer and star steamer, which was a batch-wise operation for steaming of the printed materials. Today, we will be discussing another process for fixation of the printed materials, that is continuous steaming. This is in continuation to the previous methods. Today's method is an advanced version of the previous methods. As visible to you in the notes, continuous steaming, it is an important system of steaming where large amounts of goods are to be steamed. अगर हमारे पास स्टीम करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल की मात्रा ज़्यादा है तो हम कंटिन्यूस स्टीमिंग सिस्टम्स का उपयोग करते हैं, ऐसी मशीन्स का उपयोग करते हैं. This is done by passing the printed cloth slowly through an atmosphere of steam in a large closed chamber. ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक ए क्लोज चैम्बर, जो कि एक बहुत बड़ा चैम्बर, स्टील का चैम्बर बनाते हैं, जिसमें से हम स्टीम का एटमॉस्फेयर जनरेट करते हैं बाय पासिंग स्टीम. तो उसमें से हम मटेरियल को कंटिन्यूसली पास करते हैं. सो in the notes, the machine which you are seeing in the notes, that is visible to you, that is from a company Mather and Platt. Mather and Platt is the name of the company which made this continuous steamer first time. इसमें क्या होता है? This involves the passage of cloth continuously through steam in a chamber in the form of long loops suspended from brass poles, which are supported and carried forward by endless traveling chains. इसका चित्र आप जो है वो अपने नोट्स में सामने देख रहे हैं, कंटिन्यूस ऑटोमेटिक स्टीमिंग चैम्बर. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक स्टील का एक चैम्बर बनाया गया है जिसमें कि ब्रास के रोलर्स उसके ऊपर वाली साइड हम लगाते हैं और वो रोलर्स मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द चेन्स, और मटेरियल को उन रोलर्स के ऊपर से हम पास करते हैं और लॉन्ग लूप्स बनाते हैं. मीन्स लूप्स मतलब मटेरियल को फीड करेंगे लेफ़्ट साइड से और फिर उस मटेरियल को नीचे तक उसको सस्पेंड करते हैं, लूप बना देते हैं, फिर मटेरियल ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से लूप्स बनते जाएंगे. और वो स्टीमिंग चैम्बर के अंदर हम जब फीड करते हैं मटेरियल को तो ये लूप फॉर्मेशन जो है वो चैम्बर के अंदर ही होगा. ठीक है. तो व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एटसेट्रा, एज फ्रॉम द फिगर इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट इट इज़ ए closed chamber in which material is being fed from left side and taken out from the right side. Length of the chamber approximately, which is shown in the diagram, is approximately 36 feet 6 inches long, and similarly height of the chamber
in which loop formation is there approximately 36 feet. तो 36 इंचेस यार्ड्स 36 यार्ड्स की हाइट हम ले सकते हैं लूप फॉर्मेशन के लिए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जैसे कि जिसमें दिखाया गया है। इसमें ऊपर की तरफ से हम देख रहे हैं जैसे ब्रास के रोलर्स होते हैं और उस रोलर्स के ऊपर से हम लूप्स बनाते हैं, और नीचे की साइड जैसे आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 5 6 स्टीम के पाइप्स नीचे दिए गए हैं जहाँ से हम स्टीम को फैब्रिक के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन की बात करें, इन द स्टीमर कैसे काम होता है, क्या चीज़ होती है। चेन्स इन द स्टीमर, चेन्स कैरिंग रॉड्स which are positively secured conduct the loops of printed cloth through the chamber. The walls of the chamber are built of strong rolled steel sections. स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं चौड़ी, और उनको वेल्ड करके इसकी चैम्बर की वॉल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, और छत जो होती है उसकी दैट इज़ ऑफ स्टीम, दैट इज़ ऑफ यू कैन से स्टीम जैकेट। स्टीम जैकेट बनाते हैं हम कास्ट आयरन की। तो स्टीम जैकेट मीन्स डबल वॉल्ड एक तरीके से चैम्बर बन जाएगा जिसमें कि स्टीम इकट्ठी होगी और फिर वहाँ से कंडेंसेट जो है वो इकट्ठा होगा एक साइड में, एंड दैट विल बी टेकन आउट, बट इट डज नॉट फॉल ऑन द फैब्रिक। The roof of the chamber is formed of cast iron steam chest to prevent condensation of steam and formation of water falling on the cloth. तो ये चेस्ट फॉर्मेशन का जो तरीका है उसमें क्या होगा कि स्टीम जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होगा और फिर बाद में उसको निकाल दिया जाएगा। फैब्रिक के ऊपर वो स्टीम का जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नहीं आएंगी। इसी तरीके से द बॉटम ऑफ द चैम्बर इज प्रोवाइडेड विद स्टीम रेडिएटिंग पाइप्स टू ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो बॉटम में मैं जैसे आपको बताया 6 पाइप्स आपको परफोरेटेड पाइप्स लगी हुई हैं जहाँ से कि स्टीम ऊपर की तरफ जाएगी और फैब्रिक को स्टीम करेगी। अब बात करें इसके ऑपरेशन की, तो इस कंटिन्यूस मशीन में, कंटिन्यूस स्टीमिंग चैम्बर में, द नंबर ऑफ प्रिंटेड पीसीज एंड ग्रे पास थ्रू द चैम्बर एट वन टाइम। मतलब क्या है कि इसकी विड्थ जो होती है कंटिन्यूस स्टीमर की ये काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें कि हम 3-4 लॉट्स जो हैं वो इकट्ठी हम उसमें फीडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो 4 लॉट्स, ट्रॉली में से 4 लॉट्स इसमें इकट्ठे डायरेक्टली फीड हो रहे हैं साइड बाय साइड। तो इसकी विड्थ इतनी होती है कि 4 विड्थ के फैब्रिक्स जो हैं वो इसमें हम फीड कर सकते हैं कंटिन्यूसली। अब ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है, व्हाट हैपन्स, तो जितनी विड्थ है उसके केस में हम फैब्रिक को फीड करेंगे, और ब्रास रोलर्स जो हीटेड होते हैं, हीटेड ब्रास रोलर्स जो हैं, स्टीम हीटेड ब्रास रोलर्स, कॉपर के रोलर्स, उनके ऊपर से मटेरियल को लिया जाता है। एंट्री ऑफ द क्लॉथ इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ स्टीम हीटेड ब्रास रोलर्स, ड्रा रोलर्स। ड्रा रोलर में जो मटेरियल को चैम्बर में आपके लेंगे। ठीक है, ऑन लीविंग द ड्रा रोलर्स द क्लॉथ इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड इन द सीरीज ऑफ फोल्ड्स और लूप्स। तो जब ड्रा रोलर्स के ऊपर से मटेरियल चैम्बर के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें लूप फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ डन मैकेनिकली, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही लूप जो है मटेरियल अंदर जाएगा, एंड देन इट गोज़ डाउन एंड देन कम्स अप, then goes down, then comes up, loop formation up to a certain length जो है वो फॉर्मेशन होना, लूप फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान में इसमें एक ऑपरेशन में दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट फैब्रिक विल बी कंटिन्यूसली मूविंग वेरी स्लोली। ओके, आफ्टर द लूप फॉर्मेशन इज देयर, दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल चैम्बर में हमने 1000 मीटर और 2000 मीटर्स मटेरियल लूप फॉर्म में हमने इकट्ठा कर लिया है, एंड आफ्टर दैट स्पीड ऑफ द फैब्रिक इज सेट इन दिस वे दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टीमिंग इज अचीव्ड इन द चैम्बर। माने कि जितना टाइम हमने स्टीमिंग को देना है
लूप फॉर्मेशन में, और उसके बाद उस चैम्बर में जितना रहने का ड्वेलिंग टाइम है, रहने का टाइम है, वो उतना उसमें होना चाहिए कि प्रिंटेड मटेरियल आपका उसमें जो डाई है वो प्रॉपरली फैब्रिक के ऊपर फिक्स हो जाए. तो स्पीड ऑफ द मटेरियल इज कंट्रोल्ड बाय विच वी गेट द प्रॉपर स्टीमिंग टाइम. Okay, so this provides us the continuous steaming operation in which large amount of the printed fabric is steamed. तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है. इसके खास फीचर्स हैं जो आपको ये नोट्स में नज़र आ रहे हैं. देखिए, द फर्स्ट वन इज़ ग्रेट एडवांस ओवर द अर्लियर स्टीमर्स. जो पिछले बैच वाइज स्टीमर्स थे उनसे हमारे को बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मटेरियल मिलता है और उसके ऊपर काफ़ी एडवांसमेंट है. नंबर 2, मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट्स. इसमें जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत कम हैं. नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट रिजल्ट्स. हमें क्वालिटी ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा मिलता है. नंबर 4, प्रिंटेड सरफेस cloth does not come into contact with the metal poles in the steamer, thereby preventing the marking of problem. मीन्स क्या हुआ कि प्रिंटेड साइड वाली जो फैब्रिक होता है वो रोलर्स के टच में नहीं आता है. ओनली अनप्रिंटेड मतलब बैक साइड ऑफ द फैब्रिक दैट कम्स इन टच विद द रोलर्स. इससे मार्किंग ऑफ की प्रॉब्लम जो है वो हमें नहीं होती है. मार्किंग ऑफ क्या होता है कि कलर जो है प्रिंट से, गीले प्रिंट से रोलर के ऊपर आ जाता है और वहाँ से फैब्रिक के दूसरे पार्ट्स को वो गंदा कर देता है. तो दिस इज़ कॉल्ड मार्किंग ऑफ. तो ये प्रॉब्लम हमें इसमें फेस नहीं करनी पड़ती. नंबर 5 इज़ द एजिंग एंड स्टीमिंग कैन बी कैरिड आउट इन द सेम स्टीमर. तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. एजिंग मीन्स फिक्सेशन ऑफ द प्रिंट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लेस देन 100 डिग्री, एंड स्टीमिंग मीन्स more than 100 degree centigrade under higher pressures. So both of the operations can be carried out in this continuous steamer. So today's lecture was specifically meant for this third type of fixation process, that is the continuous steaming. So I have discussed regarding the construction of this continuous steaming chamber. स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये कास्ट आयरन की रूफ होती है, कास्ट आयरन चेस्ट, और इसमें हम कंटिन्यूसली एट ए टाइम 4 ट्रॉलीज मीन्स 4 ट्रॉलीज आपको लगे 4 विड्थ ऑफ फैब्रिक्स जो है कंटिन्यूसली फीड कर सकते हैं. और ख़ास तौर पर इसमें लिमिटेशन क्या है, थोड़ा सा क्या है कि इसमें जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होगा तभी हम कंटिन्यूस स्टीमिंग चैम्बर को यूज़ कर पाएंगे. अदरवाइज़ इस केस में हमें ये जो एक हल्की लिमिटेशन कह सकते हो, उसके ड्रॉबैक भी कह सकते हो, बट advantages are much more than the limitations. Okay, so today we have discussed about the continuous steaming operation in a continuous steaming chamber. Okay, thank you. You go through these notes and also listen to this lecture. If anything is not clear to you, we will discuss it again. Okay, that will be discussed again. Thank you very much.